ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ آج صبح سے ہی میری طبیعت خراب تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے بچے کی پیدائش کا وقت قریب آن پہنچا ہے۔ میں بار بار اپنی طبیعت سے نڈھال نیم بے ہوش ہو جاتی تھی۔ ابھی اسپتال جانے کا وقت قریب تھا۔ میں سیدھی اسی اسپتال میں چلی آئی جہاں سے میں پورا عرصہ چیک اپ کرواتی رہی تھی۔ ہسپتال میں داخل ہونے کی کچھ دیر بعد ہی میرا بیٹا اس دنیا میں آ چکا تھا۔ میں اب اپنا کام کرنے میں آزاد تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ میرے ارد گرد کوئی نہیں ہے تو وہاں پر موجود ایک آیا کو میں نے بلایا اور اس کے کان میں ایک بات کہی۔ میری بات سن کر وہ حیرت سے ششدر ہو کر مجھے دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، بس تم میرا کام کر دو۔ تمہیں میں نے جیسا کہا ہے ویسا ہی کر دو۔ پیسوں کی لالچ میں آ کر اس کی آنکھیں چمکنے لگیں اور پھر اس نے ویسا ہی کیا جیسا میں نے کہا تھا۔ میرا نام صبا ہے اور میں ایک 28 سالہ جوان عورت ہوں۔ شادی کو 6 سال گزر چکے ہیں۔ اپنے گھر میں بہت مطمئن اور خوش ہوں۔ میرے 2 بچے ہیں۔ بیٹی 3.5 سال کی ہے اور بیٹا 2 سال کا ہے۔ میں اپنے گھر میں بہت خوش اور مطمئن ہوں۔ میرے شوہر فراز کی بڑے بازار میں برتنوں کی دکان تھی۔ اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی تھی۔ ہماری گزر بسر بہت آسانی سے ہو رہی تھی۔ ساس اور نندوں کا بھی کوئی جھمیلا نہیں تھا، کیونکہ فراز اپنے کام کے سلسلے میں شہر میں آباد تھے اور وہ سب گاؤں میں رہتے تھے۔ میرے میکے والے بھی ایک قریبی گاؤں میں رہتے تھے۔ ہم لوگ اکثر مہینے بعد وہاں چلے جاتے اور 2 دن گزار کر آ جاتے۔ زندگی میں سکون ہی سکون تھا۔ ابھی صرف بیٹی ہی اسکول جاتی تھی اور بیٹا ہر وقت میرے پاس رہتا تھا کہ اچانک انہیں دنوں میں میری طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ ہر وقت جی متلاتا رہتا، چکر آتے۔ مجھے لگتا شاید کمزوری کے باعث ایسا ہوگا، لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس نے یہ خبر سنائی کہ میں ایک بار پھر ماں بننے والی ہوں۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی، کیونکہ میں ابھی مزید بچہ نہیں چاہتی تھی۔ ابھی تو دونوں بچے بہت چھوٹے تھے اور یہ بچہ میرے لیے ایک نئی ذمہ داری لے کر آ رہا تھا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ مجھے کوئی دوائی دے دیں، مجھے ابھی یہ بچہ نہیں چاہیے، لیکن اس کا کہنا تھا کہ اب تو 3 ماہ سے اوپر ہو گئے ہیں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اور ویسے بھی ہم ایسی دوائی نہیں دیتے، یہ غیر قانونی ہے۔ میں نے اور بھی کئی ڈاکٹروں کو چیک کروایا، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا۔ مجبوراً مجھے صبر کر کے بیٹھنا پڑا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایک ایسی مصیبت کو گلے لگا رہی ہوں جس سے چھٹکارا پانے میں میری جان تک کو بن جائے گی۔ نہ جانے کیسے میں نے یہ وقت گزارا تھا۔ 6 مہینے میں جب میں نے الٹرا ساؤنڈ کروایا تو ڈاکٹر نے کہا کہ بچہ ویسے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کی بناوٹ اور ساخت کچھ عجیب سی لگ رہی ہے، لیکن اس نے واضح طور پر کچھ نہیں کہا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان تو ہوئی، لیکن زیادہ توجہ اس لیے نہیں دی کہ ڈاکٹر کی تو عادت ہوتی ہے، وہ اس طرح کے وہم ڈالتے رہتے ہیں۔ لیکن 6 مہینے سے 9 ماہ تک میں نے یہ عرصہ بہت مشکل اور تکلیف میں گزارا تھا۔ ہر وقت پیٹ کھنچا رہتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سانس بند ہونے والا ہے۔ ہر وقت نیند آری رہتی تھی، آنکھیں بند ہوتی رہتی تھیں، مجھے چکر آتے رہتے تھے، ہر وقت بھوک لگی رہتی تھی۔ میرے شوہر فراز بھی اس بات سے بہت پریشان تھے، کہتے تھے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہاری کیسی حالت ہو گئی ہے، پہلے تو تم ایسی نہیں تھی، اب تو تم بہت پھیل گئی ہو اور اتنی موٹی ہو گئی ہو۔ لیکن میں انہیں کیا بتاتی، میں تو خود بہت پریشان تھی۔ ایک تو ایک نیا بچہ گلے پڑ رہا تھا اور دوسرا میں اتنا بیمار رہنے لگی تھی۔ خدا خدا کر کے یہ وقت ختم ہونے والا تھا اور آج صبح سے میری طبیعت بہت خراب تھی۔ مجھے ہلکی ہلکی درد محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا کہ آج بچے کی پیدائش کا دن ہے، میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں نے فراز کو دکان پر فون کر دیا اور انہیں اپنی طبیعت کے بارے میں بتا دیا۔ میرا فون سننے کے فوراً بعد ہی فراز گھر بھاگے آئے، بچوں کو ہمسائے کے پاس چھوڑا اور ہم دونوں اسپتال چلے آئے۔ میں اسی ڈاکٹر کے پاس آئی تھی جس کے پاس اپنا ریگولر چیک اپ کرواتی رہی تھی۔ ہسپتال آنے کے بعد ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی اور اس کے کچھ وقت کے بعد میں نے ایک بچے کو جنم دے دیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد وہاں پر موجود سٹاف چیموگوئیاں کرنے لگا۔ وہ عجیب سی نظروں سے بچے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تو میں نے نرس سے بچہ دکھانے کی فرمائش کر دی، لیکن وہ ویسے ہی اپنی جگہ خاموش کھڑی رہی۔ نرس کے رویے سے مجھے کچھ عجیب پراسراریت سی محسوس ہوئی تو میں نے اٹھ کر بچہ دیکھنے کی کوشش کی، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ وہ بچہ دکھنے میں بہت عجیب تھا۔
اس کا سر بہت بڑا تھا اور آنکھیں بڑی بڑی باہر کو نکلی ہوئی تھیں۔ پتلا سا چہرہ اور جسم کا دھڑ بہت چھوٹا تھا۔ میں نے اس بچے کو دیکھتے ہی چیخ مار دی۔ وہاں پر موجود سٹاف بھی حیران پریشان رہ گیا۔ یہ عجیب شکل و صورت والا بچہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی جن کا بچہ ہو، بلکہ وہاں پر موجود ایک آیا نے تو منہ بھر کر کہہ بھی دیا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل دہل گیا۔ میں نے بھی اسے دیکھا تو مجھے اس آیا کی بات سچ لگ رہی تھی۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آخر یہ کیا تھا؟ یہ میں نے کسے جنم دے دیا؟ مجھے ڈاکٹر کی بات یاد آئی جب اس نے مبہم سے انداز میں کہا تھا کہ بچہ کچھ عجیب ساخت کا حامل ہے، اور میں نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ اب اسے دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ ان حالات میں کچھ دیر سوچنے کے بعد میں نے اسی آیا کو اپنے قریب بلا کر اس کے کان میں کہا کہ اس بچے کو باہر کہیں کچرے دان میں ڈال دو یا کہیں پھینک آؤ، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، اور میرے شوہر سے کہنا کہ بچہ مردہ پیدا ہوا تھا۔ وہ آیا میری بات سن کر مجھے حیرت اور پریشانی سے دیکھنے لگی، لیکن میں نے اسے پیسوں کا لالچ دے کر کسی نہ کسی طرح راضی کر ہی لیا۔ کچھ دیر کے بعد جب میرے پاس کوئی نہیں تھا تو وہ آیا چپکے سے میرے پاس آئی اور چادر میں بچہ لپیٹ کر لے گئی۔ میں نے تو جیسے سکون کا سانس لیا کہ شکر ہے جان چھوٹی۔ مجھے تو اس بات کا بھی خیال نہیں رہا تھا کہ آخر اسے پیدا تو میں نے ہی کیا تھا، وہ میری اولاد ہی تو تھا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ جان چھوٹنے کی نہیں ہے، بلکہ اب تو مصیبت نے مستقل میرے گھر کا رستہ دیکھ لیا ہے۔ ڈاکٹر نے مجھے کچھ دیر کے لیے روک لیا تھا۔ تقریباً 4 گھنٹوں کے بعد مجھے چھٹی مل گئی۔ بچے کی موت کا سن کر فراز بہت دکھی تھے اور میں نے بھی آزردہ ہونے کی اداکاری کی۔ فراز نے مجھے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم فکر مت کرو صبا، ابھی تو ہمارے بچے ہیں، اللہ ہمیں اور بچے دے گا، تم صبر کرو اور اللہ کی رضا میں راضی رہو۔ مجھے دل ہی دل میں تھوڑی سی شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے میں فراز کو دھوکہ دے رہی ہوں، لیکن میں کیا کرتی؟ میں وہ بچہ جو واقعی کسی جن کا بچہ لگ رہا تھا کس طرح اپنے گھر لے جاتی، کس طرح اسے پالتی؟ نہیں، میں ایسا بالکل نہیں کر سکتی تھی۔ اپنی آنکھوں میں آئے نقلی آنسو صاف کیے اور فراز کے ہمراہ گھر آ گئی، لیکن گھر میں داخل ہوتے ہی میرا دل دھک سے رہ گیا جب میں نے دیکھا کہ میرے دونوں بچے صحن میں کھیل رہے تھے، جبکہ ایک چھوٹا بچہ سامنے جھولے میں پڑا رو رہا تھا۔ میں نے فراز کی طرف ناسمجھی کے عالم میں دیکھا اور وہ تو پہلے ہی میری طرف دیکھ رہے تھے۔ ہم دونوں ایک دم آگے بڑھے اور پھر میں نے دیکھا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جسے میں نے جنم دیا تھا۔ اس کو دیکھ کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور فراز تو حیرت سے بالکل ساکت کھڑے رہ گئے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھے کہتے، صبا یہ بچہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ فراز نے حیرانی سے کہا تو میں نظریں چراتے ہوئے کہنے لگی، میں تو خود آپ کے ساتھ اسپتال سے آئی ہوں، مجھے کیا معلوم یہ کون ہے اور کہاں سے آیا ہے؟ میں نے اپنے دونوں بچوں کو پاس بلا کر ان سے پوچھا کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے تو ان دونوں کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ میں نے فراز سے کہا کہ آپ تو بچوں کو ہمسایوں کے پاس چھوڑ کر گئے تھے، پھر بچے یہاں پر کیسے آئے؟ انہوں نے گھر کیسے کھولا؟ فراز تو پہلے ہی اس بات سے پریشان تھے، اسی لیے وہ فوراً ہمسایوں کی طرف گئے تاکہ ان سے پوچھ سکیں، لیکن ساتھ والی ہمسائی نے جو کچھ کہا اسے سن کر تو ہمارے پیروں تلے سے زمین سے رک گئی۔ اس نے کہا، بھائی آپ خود ہی تو میرے پاس آئے تھے اور کہا تھا کہ ہمیں اسپتال سے چھٹی ہو گئی ہے، اسی لیے بچے بھیج دو۔ میں نے بچے آپ کو دے دیے۔ تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ آپ کا گھر بھی کھلا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں نے سوچا کہ شام کو آپ کی طرف چکر لگاؤں گی، تو میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ اس کی بات سن کر فراز کے چہرے کا ایک رنگ آ رہا تھا اور ایک رنگ جا رہا تھا۔ آخر کون ان کے بھیس میں یہاں پر آیا تھا؟ فراز نے جب مجھے آ کر یہ بات بتائی تو میں بھی حیرت سے ششدر رہ گئی، کیونکہ فراز تو ہر وقت میرے ساتھ اسپتال میں ہی تھے۔ پھر یہ کون تھا اور وہ بچے کو یہاں پر کیسے لے کر آیا؟ اسے کیسے پتا کہ یہ میرا بچہ ہے؟ سوچ سوچ کر میرا دماغ تھک چکا تھا اور وہ بچہ جھولے میں لیٹا آرام سے سو رہا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے عجیب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ ابھی وہ آرام سے سو رہا تھا، میں بھی اندر آ کر آرام سے لیٹ گئی۔ فراز پریشان سے میرے قریب آ گئے اور کہنے لگے، صبا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ بچہ کہاں سے آیا ہے اور کون اسے یہاں پر چھوڑ گیا ہے۔ ہم پہلے ہی اتنے پریشان ہیں، ہم نے ابھی اپنا بچہ کھویا ہے اور ابھی یہ عجیب سا بچہ ہمارے پاس کوئی چھوڑ گیا ہے۔ فراز نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ باہر سے ایک باریک سی تیز آواز سنائی دی۔
वो बच्चा मैं ही हूँ, मैं मरा नहीं था। ये आवाज़ सुनकर हम हक्का बक्का रह गए। बच्चे की आवाज़ के साथ ही फराज एकदम उठ खड़े हुए। मैं भी तेज़ी से उठकर बाहर आई, लेकिन वो बच्चा तो अभी भी सो रहा था। फराज मुझसे पूछने लगे, सबा क्या तुमने भी वो आवाज़ सुनी थी जो अभी मैंने सुनी है? तो मैंने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुमने सुना उस बच्चे ने क्या कहा था? फराज ने दोबारा मुझसे सवाल किया तो मैंने दोबारा इस बात में सर हिला दिया। क्या ये बात सच है? फराज ने अब की बार सख्त लहजे में पूछा। तो अब की बार मैं चुप खड़ी रही और नज़र झुका ली। फराज ने मलामत से मेरी तरफ देखा और कहा, सबा इसका मतलब है कि ये बात सच है। अब फराज ने हारे हुए अंदाज में कहा तो मैं एकदम आगे बढ़ाई और फराज का हाथ पकड़ लिया। फराज, ये सच है, ये वही बच्चा है जिसे मैंने जन्म दिया है। लेकिन आप खुद देखें ये कितना अजीब सा है। इसका चेहरा देखें, इसकी साख देखें, यह कितना अजीब सा बच्चा है। और फिर अभी उसने आपको आवाज़ देकर कहा कि वो बच्चा मैं हूँ। क्या ये आम नॉर्मल बच्चों जैसी बात है? क्या आम बच्चे ऐसे होते हैं? वहाँ पर मौजूद एक आया कह रही थी कि ये किसी जिन का बच्चा लगता है। अभी मैंने इतनी ही बात की थी कि इतने में बच्चे की आवाज़ दोबारा सुनाई दी। वो कह रहा था, हाँ मैं एक जिन ज़ादा हूँ और मैं जिन्नात की दुनिया से आया हूँ। मैंने और फराज ने डर के दोबारा उस बच्चे की तरफ देखा, लेकिन वो अभी भी सो रहा था। मैं बहुत घबरा गई और अपने बच्चों को लेकर अंदर कमरे में चली आई। वो बच्चा अभी भी सो रहा था। मैंने फराज को बाजू से पकड़ लिया और अपने दोनों बच्चों को अपने साथ लगा लिया। फराज, मुझे लगता है हम किसी बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। न जाने कौन, मेरा दिल बैठा जा रहा है। प्लीज़ कुछ करें, इस बच्चे को लेकर कहीं चले जाएं या इसको कहीं फेंक दें। मैंने अभी इतना ही कहा था कि एकदम फिर उस बच्चे की आवाज़ सुनाई दी और वो कह रहा था, खबरदार, अब दोबारा मुझे फेंकने की या कहीं पे छुड़वाने की बात की, मैं यहाँ से कहीं भी नहीं जाऊँगा। उस बच्चे की बात सुनकर मैं और फराज शशतर रह गए। लेकिन अब हमारे लिए आगे का रास्ता बंद था। हम दोनों मियाँ बीवी सहमे हुए अंदाज में अपने कमरे में बैठे हुए थे। न जाने कितना वक्त गुजर गया कि फराज कहने लगे, सबा ये हमारे साथ क्यों हुआ है? आखिर ये बच्चा हमारे घर क्यों पैदा हुआ है? आखिर हमसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया था कि ये बच्चा हमारे घर पैदा हुआ? फराज बहुत टूटे और हारे हुए लहजे में कह रहे थे। मैं देख सकती थी कि फराज की आंखों में नमी है। मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा और कहा, फराज, मैंने इसीलिए इस बच्चे को खुद से दूर कर दिया था। आप मेरे बारे में भी तो सोचें, मैंने कितना हौसला किया था। मैं आखिर माँ हूँ इस बच्चे की, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये बच्चा हमारा नहीं है, ये कुछ और है। इसीलिए मैंने इसे खुद से दूर फेंक दिया था। लेकिन ये दोबारा हमारे घर में आ गया है और न जाने किस मकसद के लिए आया है। मेरी बात सुनकर फराज ने भी ताइदी अंदाज में सर हिला दिया। अब वो बच्चा हर वक्त हमारी नज़रों के सामने रहता था और हम उसे देख देख कर परेशान और खौफजदा होते रहते थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसको कैसे अपने से दूर करें। फिर एक दिन मैंने फराज से कहा कि इसको आप किसी यतीम खाने में जमा करवाएं या किसी कचरे के डब्बे में फेंक दें। बस कहीं पे भी इसे छोड़ आएं, शायद इस तरह हमारी जान छूट जाए। मुझे इससे बहुत खौफ आता है। मैंने अभी चिढ़कर फराज से ये बात की ही थी कि बाहर से एकदम चीखने की आवाज़ें आने लगीं। मैं एकदम दौड़कर बाहर आई। मेरे पीछे पीछे फराज भी आ गए और फिर हमने जो देखा उसने हमें लर्जा कर रख दिया। मेरी बेटी सीढ़ियों से गिर पड़ी थी और वो सहन में खून में लथपथ पड़ी थी। मेरा दिल हलक को आ गया था। मैंने एकदम आगे बढ़कर उसे पकड़ा। वो बेहोश हो चुकी थी। मैं रोने लगी और चीख चीख कर फराज से कहने लगी कि फ़ौरन अस्पताल चलें। फराज के तो अपने हाथ पैर फूल गए थे। वो जल्दी से मोटरसाइकिल निकाल लाए और मैं पीछे अपनी बेटी को लेकर बैठ गई। अस्पताल पहुंचने तक उसका काफ़ी खून ज़ाया हो चुका था, लेकिन एमरजेंसी में उसको फ़ौरन दाखिल किया गया और उसका सबसे पहले ट्रीटमेंट किया गया। तकरीबन 4 घंटे हमारी जान सूली पर अटकी रही और फिर जाकर मेरी बेटी की हालत ख़तरे से बाहर हुई। मैं फराज से कह रही थी कि हो ना हो ये उसी बच्चे का काम है, उसी ने इसको धक्का दिया है। लेकिन फराज ये बात मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि वो बच्चा तो झूले में लेटा हुआ था और मेरी बेटी तो सीढ़ियों से गिरी थी। रात तक हम अस्पताल में ही बैठे रहे। जब उसकी हालत खतरे से बाहर हुई तो डॉक्टर ने उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया। घर आकर भी मैं अपनी बेटी के सिरहाने बैठी रही, क्योंकि तकलीफ़ की वजह से वो बहुत बेचैन थी।
और बार बार मुझे पुकारती थी। पहले मुझे उस बच्चे से सिर्फ खौफ आता था, लेकिन अब मुझे उससे नफरत महसूस हो रही थी। काश मेरे बस में होता तो मैं पहले ही उसे ख़त्म कर देती। घर के मामूलात में अब बहुत तब्दीली आ चुकी थी। एक तो बेटी बीमार थी और दूसरा उस बच्चे की वजह से मैं हर वक्त एक जहनी अजाब में मुब्तला रहती थी। अब ये बच्चा भी 2 माह का हो चुका था कि उन्हीं दिनों में फराज की अम्मी गांव से चली आईं। वो इतनी अचानक आईं कि हम हैरान रह गए। ना तो उन्होंने आने से पहले इत्तला दी थी और ना ही हमें पूछा था। मैं और फराज उनको देखकर एकदम हैरान हो गए और गड़बड़ा गए, क्योंकि वो बच्चा अभी इधर ही मौजूद था। अम्मी को ये तो पता था कि उनका पोता मुर्दा पैदा हुआ है, लेकिन इस बच्चे के बारे में हमने कोई हकीकत नहीं बताई थी। अब जब अम्मी अचानक घर पर चली आईं तो हमें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या कहें। अम्मी ने जब इस बच्चे को देखा तो पहले तो हैरान, परेशान, खामोश खड़ी की खड़ी रह गईं और फिर ज़ेरे लब आयात की तिलावत करने लगीं। मैं अम्मी की कैफियत समझ रही थी। उस वक्त उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन शाम के वक्त मुझे कमरे में बुला लिया। फराज पहले ही वहाँ पर मौजूद थे। बेटा, तुम दोनों मुझे ये बताओ, ये बच्चा कौन है और कहाँ से आया है? मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, इसमें कुछ अजीब सा है। तुम लोग मुझे सब कुछ सच सच बताओ। अम्मी का पूछना था कि मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। फराज भी परेशानी से सर झुकाए बैठे थे और फिर मैंने अम्मी को सब कुछ बता दिया। मेरी बात सुनकर अम्मी बहुत परेशान हुईं। मैंने सारी बात बताने के बाद अम्मी से कहा कि अब आप ही बताएं, हम इस बच्चे का क्या करें? हम जब भी इसको कहीं भेजते हैं या छोड़ने का नाम लेते हैं तो यह हमें नुकसान पहुंचाता है। मेरी बात सुनकर अम्मी सोच में पड़ गईं और कहने लगीं, तुम फिक्र ना करो, मैं कुछ ना कुछ सोचती हूँ, कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। अम्मी की बात से मुझे बहुत ढारस मिली थी। मुझे यकीन था कि अब कुछ ना कुछ हो जाएगा। लेकिन अगले दिन सुबह फजर के बाद मैं अपने मामूल के मुताबिक कुरान पाक की तिलावत कर रही थी कि वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, चीखने लगा और एकदम अम्मी के ऊपर उसने हमला कर दिया। अम्मी उस हमले के लिए तैयार नहीं थी और दूर जाकर गिरी। उनको काफ़ी चोटें लगीं। उस बच्चे ने सख्ती से अम्मी को मना कर दिया कि ख़बरदार, अगर तुमने यहाँ पर कोई इबादत की या कुरान पाक पढ़ा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम में से किसी को भी ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा और मुझे यहाँ से भेजने का ख्याल तो अब दिल से निकाल ही दो। मैं अब कहीं नहीं जाऊँगा। वो बच्चा भारी और तेज़ आवाज़ में बोल रहा था। उसकी आवाज़ कानों के पर्दों पर पड़ रही थी। हम शशदर से उसे देखते रह गए। मैं और फराज इतने खौफजदा हो गए थे कि कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करें। गिरने के बायस अम्मी के काफ़ी चोटें लग गई थी। अम्मी एक दिन में ही बहुत नढाल और कमज़ोर लगने लगी थी। अम्मी को देखकर फराज रो पड़े और कहने लगे, अम्मी, आप अभी वापस गांव चली जाएं। यहाँ पर अभी हालात देख रही हैं। जब तक इस बच्चे का कुछ नहीं हो जाता, हम इसका कोई इंतज़ाम नहीं कर लेते, तब तक आप गांव में ही रहें। जैसे ही कुछ होगा हम आपको बता देंगे और आप दोबारा मेरे पास आ जाना। लेकिन फराज की बात सुनकर अम्मी ने उसे रद्द कर दिया और कहने लगी, मैं तुझे इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, वरना मेरे दिल को बेचैनी लगी रहेगी कि न जाने मेरे बच्चे किस हाल में हैं। अब जो भी होगा हमें मिलकर उसे देखना होगा। मैं और फराज अम्मी की बात पर एक दूसरे को देखते रह गए। घर में अजीब सी पुरस्कारियत छाई हुई थी। मेरे दोनों बच्चे भी बहुत खौफजदा और नढाल से लग रहे थे। मैं जब भी नमाज पढ़ने की कोशिश करती, वो बच्चा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता, मुझे रोकने की कोशिश करता। मैं डर जाती और खौफजदा होते हुए नमाज छोड़ देती। कुरान पाक खोलने लगती तो तब भी वो आकर मुझे मारने लगता, मेरे ऊपर हाथ उठाता। हालांकि वो अभी सिर्फ 2 माह का था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे उसमें जवान इंसान जितनी ताकत है। वो चलता फिरता था और अजीब सा लगता था। उसके सर पर बाल भी उगाए थे और वो बाल ऐसे लगते थे जैसे कांटे उगे हों। मुझे और फराज को उसे देखकर कराहियत महसूस होती थी, खौफ आता था, लेकिन अभी हम क्या कर सकते थे। कुछ दिनों में ही अम्मी की तबीयत काफ़ी बेहतर हो गई थी। फिर एक दिन अम्मी कहने लगीं कि हमारे गांव में एक बाबा जी हैं, वो काफ़ी पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं। फराज, मुझे उनके पास ले चलो, मैं उनसे एक बार ये सारा मसला बताकर कोई हल पूछती हूँ। फराज ने हामी भर ली और अम्मी को अगले ही दिन उन बाबा जी के पास ले गए। मैं और बच्चे घर पर अकेले थे, तो सारा दिन मैंने किस तरह गुजारा ये मैं ही जानती हूँ। फराज और अम्मी के जाने के बाद उसने सारे घर में तोड़ फोड़ शुरू कर दी। मेरे घर की कोई भी चीज़ उसने सलामत नहीं रहने दी।
हर चीज़ को उठा उठा कर पटक दिया। किचन में खाने की कोई चीज़ नहीं रहने दी। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, चीख रहा था और भयानक आवाज़ें निकाल रहा था। और तो और उसके साथ और भी कई बच्चे वहाँ पर आ चुके थे, जिन्हें देखकर हम और खौफज़दा हो गए। वो सारे बच्चे जिन्नात के बच्चे थे और वहाँ पर उस बच्चे का साथ देने के लिए आए हुए थे। मैं और बच्चे एक कमरे में बंद होकर रह गए। सारा दिन वो बाहर शोर मचाता रहा और हम अंदर खौफज़दा होते रहे। शाम को जब फराज आए तो उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मैं भागकर उनसे लिपट कर रोने लगी। घर की हालत देखकर फराज और अम्मी भी शशदर होकर रह गए थे और चुप के चुप हो गए। मेरे बगैर बताए भी उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि पीछे क्या कुछ हुआ होगा। मैंने जब फराज से पूछा कि बाबा जी ने क्या कहा तो वो कहने लगे, मैं यहाँ पर तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। तो हमारे इर्द गिर्द हैं, हमारे करीब हैं, हमारी हर बात सुन सकता है, हमारी हर बात का वो कोई ना कोई हल निकाल लेता है। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ उस पर अमल करूंगा जो कुछ बाबा जी ने कहा है, ताकि जल्द से जल्द हम इससे छुटकारा पा सकें। फराज की बात मैं समझ गई थी, क्योंकि वाकई हम जो भी सोचते हैं या जो भी कहते हैं वो हमारी बात सुन लेता और उस पर उससे पहले ही एक्शन ले लेता। इसी वजह से हम अभी तक उससे छुटकारा हासिल नहीं कर पाए थे। अगले ही दिन फराज जाकर काली सिरी ले आए और उसे घर में एक तरफ रख दिया। मैं सिर्फ फराज को देख रही थी कि वो क्या कर रहे हैं। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बाबा जी ने यकीनन सबका सदका देने के लिए कहा होगा। वो काली सिरी घर में एक तरफ पड़ी थी। सारा दिन रख के असर के बाद उसका सदका देना था, लेकिन फराज जब असर के बाद उसे लेने गए तो वहाँ पर सिरी मौजूद ही न थी। फराज बहुत परेशान हुए। उन्होंने मुझसे पूछा, लेकिन मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था कि आखिर वो कहाँ गई। फराज ने कम नखियों से उस बच्चे की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। फराज समझ गए कि सिरी किसने खाई है या गायब की है। इतनी देर में फराज ने बाबा जी की बताई हुई पढ़ाई करनी शुरू कर दी और जैसे जैसे वो पढ़ते जा रहे थे वैसे वैसे उस बच्चे का रंग अजीबो गरीब होता जा रहा था। उसकी शक्ल बद से बदतर होती जा रही थी। फराज उसे गाहे बगाहे देख रहे थे, लेकिन वो बच्चा कभी अपने गले पर हाथ रखता, कभी पेट पर और कभी सर पर हाथ रखता। ऐसे लगता था जैसे उसे तकलीफ़ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रही थी कि तकलीफ़ कहाँ पर है। फराज ने सारी पढ़ाई ख़त्म की। इतनी देर में वो बच्चा नढाल हो गया और एक तरफ को गिर गया। फराज मुझसे कहने लगे, बाबा जी की पढ़ाई में असर है, या शायद उसने सिरी खा ली थी जिसकी वजह से उसके ऊपर ज़्यादा असर हुआ है। मैंने फराज से पूछा कि अभी आगे क्या करना है, तो वो कहने लगे, अब जैसे ही इसकी ताकत कम होती जाएगी तो जुमेरात को बाबा जी आएंगे और फिर आकर इसे घर से निकाल बाहर करेंगे। तब तक हमें किसी न किसी तरह यहाँ पर रहना ही होगा। जुमेरात में अभी 3 दिन बाकी थे और मैं तो इस बच्चे के साथ एक पल भी गुजारना मुहाल समझ रही थी, क्योंकि उसने हमारा जो हाल किया था ये हम जानते हैं कि हमारा खुदा। फराज की अम्मी भी हर वक्त पढ़ाई में मशगूल रहती थी। ये 3 दिन हमने घर में बहुत ही मुश्किल गुजारे। हर वक्त ऐसा लगता था जैसे हम अपने घर में नहीं बल्कि किसी जिन्नात की दुनिया में रह रहे हैं। हमारे इर्द गिर्द हर वक्त अजीबो गरीब शक्लों के लोग फिरते रहते हैं। साफ महसूस होता था कोई हमारे साथ आकर बैठा है, कोई खाना खा रहा है तो कोई चल फिर रहा है। मेरे बच्चों के साथ जिन्नात के बच्चे खेलते हैं, लेकिन हम उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे। हम जितनी पढ़ाई करते हैं, जितना सदका देते हैं, उसका भी कोई असर नहीं हो रहा, सिवाय इसके कि वक्ती तौर पर वो बच्चा तकलीफ़ में मुब्तला हो जाता और फिर वो नढाल होकर गिर जाता। मैं हमा वक्त अल्लाह से माफ़ी मांगती रहती हूँ कि शायद अगर मैंने उसे कचरे पर न फेंका होता तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। लेकिन फराज मेरी बात सुनकर यही कहते हैं कि ऐसा नहीं है, तुम इसे ना भी फेंकती तब भी यही कुछ होना था। लेकिन फराज की बात से मुझे तसल्ली नहीं मिलती थी। मुझे यही लगता था कि जैसे ये सब मेरी गलती है। खुदा खुदा करके ये 3 मुश्किल तरीन दिन ख़त्म हो गए और जुमेरात के दिन फराज गांव जाकर बाबा जी को घर ले आए। लेकिन जैसे ही बाबा जी ने दहलीज पर कदम रखा तो उन्होंने सारे घर में चारों तरफ एक नज़र दौड़ाई, ज़ेरे लब कुछ पढ़ा और जैसे ही उन्होंने घर में फूंक मारी, एकदम तेज़ धुआं घर से निकला। वो धुआं सारा ऊपर की तरफ जा रहा था और वो इतना गहरा था, इतना काला था कि उसमें कुछ नज़र नहीं आता था और धुआं ऊपर जाते जाते गायब होता जाता था।
कितनी देर वो धुएं के बादल इसी तरह छाए रहे। उनमें से चीखें बुलंद हो रही थीं। ऐसे लग रहा था जैसे कितनी सारी चीज़ें मिलकर चीख रही हों। बाबा जी घर के अंदर आए और फराज से कहने लगे, सारे घर में बुरी बलाओं और बदरूहों का बसेरा है। न जाने वो बच्चा कौन सी चीज़ है जिसके साथ इतना कुछ जुड़ा हुआ है। इस वजह से अभी कितनी सारी तो मैंने भगा दी हैं, लेकिन अभी भी सारा घर आसेबज़दा है। बाबा जी की बात सुनकर फराज बहुत परेशान हुए और कहने लगे, ये सब कैसे हो? हमारे साथ ही ये क्यों हुआ? फराज ने उलझे हुए अंदाज में कहा तो बाबा जी कहने लगे, पहले अपनी बीवी को बुलाओ, मैं उसके साथ बात करूँगा। फराज ने मुझे आवाज़ देकर बुला लिया। मैं घबराई हुई सी चली आई। बाबा जी ने मुझसे कहा कि आराम से सामने बैठ जाओ। मुझे बताओ कि जब तुम हामला थी क्या तुम्हें कुछ गैर मामूलीपन महसूस हुआ? क्या कुछ ऐसा जो आम नॉर्मल तौर पर नहीं होता? बाबा जी ने मुझसे पूछा तो मैं सोच में पड़ गई और फिर मुझे ख्याल आया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। मैंने डॉक्टर की बात बाबा जी को बता दी कि अल्ट्रासाउंड देखकर उसने कहा था कि ये बच्चा कुछ अजीब साख्त का है, लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया था। मेरी बात सुनकर बाबा जी सोच में पड़ गए। कहने लगे, इसके अलावा कोई और बात है तो वो भी बता दो। मैंने कहा, हाँ, मेरा सारा टाइम तबीयत बहुत ख़राब रहती थी और हर वक्त पेट खिंचा खिंचा रहता था। ऐसा लगता था जैसे कोई चीज़ ज़ोर से अपनी तरफ खींच रही हो। बाबा जी ने मेरे ऊपर कुछ पढ़कर दम किया था और फिर काफ़ी देर मेरे चेहरे पर नज़रें जमाए बैठे रहे और फिर कहने लगे, तुम्हारे अंदर एक बदरूह छुपी हुई है। अब न जाने वो कहाँ से आई है। मुझे उसे हाजिर करना होगा, फिर ही कुछ कर सकूँगा। बाबा जी की बात पर मैं खौफज़दा हो गई और फराज की तरफ देखने लगी। फराज ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे कहने लगे, तुम डरो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फराज ने मुझे तसल्ली देते हुए कहा तो मैं भी सीधी होकर बैठ गई और हिम्मत जमा करते हुए बाबा जी से कहा कि ठीक है, आप उसे हाजिर कर दें। बाबा जी ने कुछ पढ़ाई शुरू कर दी और मुझे कहा कि तुम अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। मैंने बाबा जी की हिदायत पर अमल किया और आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद ही मेरा जिस्म झटके खाने लगा और ऐसे महसूस हो रहा था जैसे मेरा सांस रुक रहा हो। फिर एकदम मैंने आंखें खोली और भारी आवाज़ में बोली, क्यों बुलाया है मुझे? बाबा जी कहने लगे, तुम कौन हो और किधर से आई हो? क्यों इस बच्ची के ऊपर कब्जा किया हुआ है? तो वो कहने लगी, ये खुद चलकर मेरे पास आई थी, मैं इसके पास नहीं आई थी और अब मैं इसके पास ही रहूँगी। वो औरत भारी और भयानक आवाज़ में बोली तो बाबा जी कहने लगे, ये तुम्हारे पास कैसे आई थी? तो जवाब में वो कहने लगी, ये बाज़ार गई थी और वहाँ पर एक दरख्त के नीचे इसने कुछ देर रुक कर सांस लिया था। मैं वहीं पर उस दरख्त के ऊपर मौजूद थी, इसीलिए मैं वहाँ से इसके साथ ही आ गई। मुझे ये अच्छी लगी थी और अब मैं इसके साथ ही रहूँगी। बाबा जी उसकी बात सुनकर सोच में आ गए और उसको कहने लगे, फिर इसका मतलब है कि वो बच्चा भी तुम्हारा है? वो जवाबन कहती, हाँ, वो बच्चा भी मेरा है, मैंने इसी के ज़रिए पैदा किया है। लेकिन तुम और तुम्हारा बच्चा अब क्यों यहाँ पर मौजूद हो? अपने बच्चे को लो और जाओ यहाँ से। तो वो कहने लगी, नहीं, वो बच्चा मैंने इसके ज़रिए पैदा किया है, अब वो इसी घर में रहेगा और यहीं पर पले बढ़ेगा, अब वो कभी वापस नहीं जाएगा, अब ये घर हमारा है। उसकी बात सुनकर बाबा जी ने कहा, ठीक है, मैं अगर तुम्हें ये घर दे दूं तो क्या तुम इन लोगों की जान छोड़ दोगी? तो कहने लगी, नहीं, ये मेरे बच्चे की माँ है, इसीलिए इसे यहीं पर रहना होगा, उसे इसके साथ ही पलना बढ़ना होगा। बाबा जी से कहने लगे, इसका मतलब है कि तू ऐसे नहीं मानेगी। फिर उसके बाद बाबा जी ने कुछ पढ़ाई की और मेरे ऊपर फूंक मारी। मेरे अंदर से तेज चीखें बुलंद होने लगीं और साथ ही साथ एक धुआं सा निकलने लगा। बाबा जी पढ़ाई करते करते साथ साथ कुछ फूंकते जा रहे थे। मेरे अंदर की चीखें बुलंद होती जा रही थीं। ऐसे लग रहा था कि ये चीखें आसमान का सीना चीर देंगी। और फिर एकदम सारा धुआं बाहर निकल गया तो मैं बेदम होकर गिर पड़ी। मुझे कुछ होश ना रही, लेकिन बाबा जी ने वो सारा धुआं बोतल के अंदर डाल दिया और उसे बंद कर दिया। फराज सारी कार्रवाई हैरत से देख रहे थे तो बाबा जी से पूछने लगे कि ये धुआं किस चीज़ का है, ये क्या है? बाबा जी ने कहा, ये धुआं दरअसल उस बदरूह का है, मैंने उसे तुम्हारी बीवी के वजूद से निकाल दिया है। अब वो इस बोतल में कैद है और जब तक मैं नहीं चाहूँगा इस बोतल से निकल नहीं सकेगी। फराज कहने लगे, बाबा जी, उस बच्चे का क्या करना है? वो भी तो सरेआम इसी तरह घूम रहा है।
बाबा जी कहने लगे, जब तक उसकी माँ इस कैद में है वो बच्चा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, लेकिन फिर भी हमें उसे उसकी दुनिया में वापस भेजना ही होगा, वरना कल को वो हमें कोई बड़ा नुकसान पहुंचा देगा। बाबा जी ये कहते हुए उठ खड़े हुए और फराज से कहने लगे कि अभी तुम लोग इसी पढ़ाई को जारी रखो और सदका वगैरह देते रहो। अब मैंने उसकी माँ को तो कैद कर लिया है, वो बच्चा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन तब तक मैं उसका भी कोई ना कोई हल निकाल लूँगा। फराज ने बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और वो चले गए। कुछ देर के बाद मुझे भी होश आ गया था। मेरे होश में आने के बाद फराज ने मुझे सारी बात बताई तो मैंने शुक्र अदा किया। फराज की अम्मी लगातार बाबा जी की पढ़ाई कर रही थी। अपनी माँ के कैद हो जाने के बाद वो बच्चा अब काफ़ी सुकून में था। वो गुस्से में तो फिर रहा था, लेकिन हमें अभी तक उसने कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था। उसने घर का बहुत नुकसान कर दिया था। उसके अलावा उसकी वजह से जो ज़हनी अजियत मैंने देखी वो कभी नहीं भुलाई जा सकती। फराज की अम्मी बाकायदा अब सारी पढ़ाई कर रही थी। उसके अलावा फराज भी बाकायदा तौर पर सदक़े का एहतमाम कर रहे थे। घर में अब कुछ दिन काफ़ी अच्छे गुजर गए थे। उस बच्चे ने अभी किसी मामले में हमें तंग नहीं किया था, लेकिन फिर भी उसकी तरफ से एक धड़का सा लगा रहता था कि न जाने किस वक्त वो क्या कर बैठे। एक खौफ और पुरस्रार सी कैफियत हर वक्त तारी रहती थी। और फिर उन्हीं दिनों में न जाने उस बच्चे को क्या हुआ। शायद उसको कोई दौरा पड़ा या न जाने क्या बात हुई, उसने मेरे बेटे पर हमला कर दिया और हम फिर उस बच्चे की तरफ से बहुत खौफजदा और चौकन्ने हो गए। हुआ कुछ यूँ था कि मेरा बेटा और बेटी सहन में खेल रहे थे, जबकि बरामदे में ही एक तरफ मैं और अम्मी बैठे हुए थे। हम लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे। न जाने किस वक्त वो बच्चा उठकर मेरे बच्चों के साथ खेल में शामिल हो गया और फिर उसने मेरे बेटे को एक ज़ोरदार किस्म का धक्का दे दिया। मेरा बेटा नीचे फर्श के साथ लगा और उसका सर फट गया। सर से खून का फवारा उबल पड़ा और वो बच्चा नीचे बैठकर मेरे बेटे का खून चाटने लगा। मेरे बेटे का खून निकलकर फर्श पर फैल रहा था और वो बच्चा अपनी ज़बान से वो चाटता जा रहा था। मैं और अम्मी हैरत से उसकी तरफ देखने लगे। फिर एकदम मुझे होश आया तो फ़ौरन भागी गई, अपने बेटे को गोद में उठाया। तब तक वो बेहोश हो चुका था। मैं उसी तरह उसे उठाकर अस्पताल की तरफ भाग गई। जब तक मैंने उसे दाखिल करवाया तब तक फराज भी पहुंच चुके थे। वो बेहद परेशान थे और चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी। मुझसे पूछने लगे कि यह सब कैसे हुआ, तो मैंने सारी बात बताई, जिसे सुनकर वो भी खौफजदा हो गए और कहने लगे, सबा पहले तो इसने ये हरकत कभी नहीं की थी, अब ये क्या मामला है? वो हमारा खून पीने तक आ गया है। ये तो ख़तरनाक बात है। कल को वो हमें भी इस तरह कोई चोट पहुंचाकर हमारा खून पी सकता है। फराज की बात सुनकर मुझे झुरझुरी सी आ गई और वाकई मैंने सोचा ऐसा भी हो सकता है। अपने बेटे का ट्रीटमेंट करवाकर हम जब घर आए तो तब तक फ़र्श बिल्कुल साफ़ था। मैंने अम्मी से पूछा कि फ़र्श किसने साफ़ किया, तो अम्मी कहने लगी कि वो बच्चा सारा खून पी गया। उसने वो सारे खून को अपनी ज़बान से चाट लिया और अब अंदर पड़ा सो रहा है। मैं और फराज एक दूसरे को देखते रह गए। फराज उसी वक्त बाबा जी के पास चले गए और उन्हें जाकर सारे मामले की खबर दी। बाबा जी ने फराज को यकीन दहानी कराई कि वो आज ही चिल्ला काटेंगे और उसे उसकी दुनिया में वापस भेज देंगे। फराज मुतमईन होकर घर आ गए। रात इशा के बाद तकरीबन 11 बजे हमारे घर पर एकदम काले बादलों ने हमला कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे सारे घर में गहरे स्याह बादल हैं, लेकिन दरअसल वो धुआं था। उस धुएं में फिर एकदम चीखें बुलंद होने लगी और वो चीखें सारे घर में सुनाई दे रही थी और फिर एकदम वो धुआं हवा में तहलील होना शुरू हो गया और कुछ लम्हों के बाद गायब हो गया। उस धुएं के ख़त्म होने के बाद मैंने देखा कि वो बच्चा वहाँ पर नहीं था। मैंने फराज से पूछा तो उन्हें भी उसकी खबर नहीं थी। उसके बाद फराज ने सारा घर छान मारा, लेकिन वो बच्चा कहीं नहीं था। फराज सुबह होते ही सीधा बाबा जी के पास गए और उन्हें बच्चे की गुमशुदगी का बताया। तो बाबा जी कहने लगे कि मैंने रात ही उसे उसकी दुनिया में वापस भेज दिया है। वो अब कभी वापस नहीं आ सकता। तुम बेफिक्र होकर अपनी ज़िंदगी गुजारो, बस सदका देते रहना और पढ़ाई करते रहना। फराज ने बाबा जी का बहुत शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी घर वापस लौट आए। इस वाक़ये को 5 साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 ही बच्चे हैं। मैंने उसके बाद बच्चा पैदा करने का रिस्क नहीं लिया। फराज का काम भी बहुत अच्छा है। इस वाक़ये के बाद हमने घर बदल लिया था, क्योंकि हम उस घर से डर गए थे। तो फराज का ख्याल था कि घर बदल लेने से मसला हल हो जाएगा।
वैसे तो अब ज़िंदगी में सुकून है, लेकिन मैं आज भी जब इस वाक़ये के बारे में सोचती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।